So, hello everyone. Today I'm going to discuss about what was the actual outcome of the research document which we shared in past 1 month. कहाँ पर 2021 के prelims में it was useful, or how many questions we could have done if you would have able to recall the important information which was given in those research document. See, question paper, few people are saying कि question paper was so unpredictable and all these things. ठीक है? See, it was not unpredictable at all. The glimpse of changing pattern was already given by UPSC in 2020. ठीक है? Glimpse UPSC ने पहले ही दे दिया था, आपने खुद को चेंज नहीं किया. It's your mistake if you did not, you couldn't foresee things, what is going to come. There was elephant in the room and still you were reading monthly magazine and trying to cover environment and ecology from current affairs and mugging up all the names of satellites and all these things. If you see my 2020 paper discussion on forum blog, I told you the same thing. The days of these mugging up of current affairs magazines and all these things are going to be soon over, and UPSC, that cycle 10 years back, that is going, UPSC is again revisiting its classical era. 10 साल पहले जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता था वैसे ही क्वेश्चन, और एक्चुअल जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड होना चाहिए वो यूपीएससी फिर से शुरू कर रही है. बीच में देयर वाज अ डार्क एज 2014, 15, 16 ऑल दीज वेयर द डार्क एजेस ऑफ यूपीएससी, जहाँ पे करंट अफेयर साइंस एंड टेक के नाम पे दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द नेम ऑफ मिसाइल्स, दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द नेम ऑफ द स्पेस मिशंस एंड एवरीथिंग, वेरी फैक्चुअल. एनवायरनमेंट के नाम पे भी रैंडम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऑल द फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स. अब देखो, बुक की फिर वहां पे यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन बुक की अब यूटिलिटी शुरू हो गई है. प्रीवियस ईयर में भी देखो, 2020 में भी बुक वाला वर्जन शुरू कर दिया था यूपीएससी ने. दिस ईयर साइंस एंड टेक देखो, ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है, चाहे वो प्रेशर कुकर का सवाल हो, चाहे सोडियम लैंप और एलईडी का क्वेश्चन रहा हो. अगेन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कुड हैव, बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन टफ पूछा था इन्वायरमेंट इकोलॉजी में. कुछ क्वेश्चन टफ थे, बाकी अगर कंसेप्ट थे. देखो होता क्या था कि बीच में 4-5 साल जो करंट अफेयर्स पूछा, लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना ही बंद कर दिया, कंसेप्ट पता ही नहीं है. व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन दे डोंट नो. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखो, ठीक है, सवाना वाला जो क्वेश्चन था, सवाना वाला क्वेश्चन वाज आल्सो फ्रॉम इकोलॉजिकल सक्सेशन क्वेश्चन, जो कंसेप्ट में आता है. ठीक है, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन ये कहता है, ऑल द लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी होती है लैंडफॉर्म की, इट्स ऑलवेज गो टू बिकम अ फॉरेस्ट. इफ इट इज अ बैरन रॉक, देन बैरन रॉक विल होगा क्या, एक बार बता देता हूं. बैरन रॉक होगी, फिर in 1000 years what will happen, the few pioneer species will some small alga and fungi and all these things, they will grow here. कुछ सालों बाद there will biomass will be accumulated, then again some shrubs will grow here, then these shrubs will become slowly, the biomass will continue to accumulate here and these shrubs will convert into a full-fledged forest. So this is the climax community. Sorry, this is the pioneer community and this forest is the climax community. But there is an exception. Exception ये है कि अगर ग्रासलैंड हो जाए, तो ग्रासलैंड अगर बन जाता है तो फिर फॉरेस्ट नहीं बनता है. ठीक है, सवाना का ग्रासलैंड डजंट बिकम फॉरेस्ट. प्रेरीज और टेम्परेट ग्रासलैंड डजंट बिकम फॉरेस्ट लास्ट में. क्यों? बिकॉज ऑफ द फायर. समय समय पे फायर आग जलती रहती है. Time to time there is a grazing herbivorous animals are also there. ठीक है,
rainfall is also less. So these are the factors because of which a grassland doesn't convert into forest. ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है. This is ecological succession question from the core of environment and ecology. If you haven't read the book, you won't be able to understand this. Same way, एक और क्वेश्चन था environment ecology में. They asked about which of the following plants or organism can grow on a soilless culture. बिना मिट्टी के कौन से हो सकते हैं. तो उसमें ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था, ये भी इन्वायरमेंट, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्वेश्चन था. दैट क्वेश्चन वाज आल्सो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्वेश्चन. ठीक है, दीज द पायनियर species means the one who are the first to colonize a particular barren rock. ठीक है, एक चट्टान को पहली बार जब मिट्टी नहीं थी तो कॉलोनाइज करने वाले जो स्पीसीज थे, दे आर कॉल्ड द पायनियर स्पीसीज. They are generally the mosses and the lichens. Mosses and the lichens are the first one who colonize a particular barren rock. And when in subsequent years they die and the biomass gets accumulated and then a small shrub starts growing and then shrubs in climax the forest comes up. ये भी क्वेश्चन वहीं का था. So similarly n number of questions were there. तो कहने का मतलब ये है, आउटकम ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में जाने की जरूरत है. गो बैक टू द वेदास वाली बात थी जो दयानंद सरस्वती ने कही थी. वी हैव टू गो बैक टू द एनसीईआरटी, वी हैव टू गो बैक टू द जनरल साइंस, वी हैव टू गो बैक टू द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बुक्स एंड द कंसेप्ट्स. ठीक है, अगले साल देखना और ज्यादा जनरल साइंस पूछेगा. The clock has turned. ठीक है, the time is repeating itself. The cycle has been completed and now the same cycle will continue. तो कंसेप्ट वाले एरा में फिर से जाने की जरूरत है. ठीक है, तो ये कर लेना. बुक्स पे ध्यान दो. एनसीईआरटीज आर अगेन इंपॉर्टेंट. जनरल साइंस के एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू करो. एनवायरमेंट इकोलॉजी की वॉट एवर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स विच यू हैव बीन रीडिंग, उसको अच्छे से पढ़ो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इंस्टेड ऑफ मंगिंग अप द नेम्स एंड रिपोर्ट नेम्स एंड द इंडिसेस एंड ऑल दिस थिंग्स. those days are gone now. You have to understand the concept, the core concepts and the principles. If you are not thorough with it, then forget it. ठीक है, भूल जाओ. पिछले साल भी कहा था मैंने, बहुत सारे लोग आर लाइक कि व्हाट इज दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड ऑल. आप इवन एंशिएंट मिडावल देखो. एंशिएंट मिडावल के जो क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री यू कुड हैव इजीली डन. एंशिएंट मिडावल क्वेश्चंस यू कुड हैव इजीली डन व्हेन इफ यू वुड हैव रेड एनसीईआरटी, एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, और तमिलनाडु बोर्ड बुक. चाहे चंगेज खान और खॉर्जिम वाला जो क्वेश्चन था वो कर सकते थे, चाहे इल्तुमिश और ऑल दीज थिंग्स, ऑल क्वेश्चंस यू कुड हैव इजीली डन. ठीक है, तो ऐसा भी बम्पर क्वेश्चन नहीं आया था कि मतलब देयर वाज नो क्लू एंड कहीं से भी आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस आर आस्किंग. एनीवेज, तो थोड़ा सा कर लेना. लेट्स मूव ऑन कि हाउ दिस पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट वेर एबल टू हेल्प दिस. ठीक है, तो ऑलमोस्ट लाइक 12 questions you could have done directly or indirectly from these PYQ document. I won't be discussing the answer key and everything because we have already discussed. That's already on the channel of forum. ठीक है, I will be just telling you कि भाई कौन सा क्वेश्चन था और कौन से ईयर के PYQ के रिसर्च डॉक्यूमेंट से वो क्वेश्चन किया जा सकता था. फर्स्ट क्वेश्चन was related to the economic recession. Which of the following steps are most likely to be taken at the time of economic recession? So in 2011 PYQ, I discussed about Keynesian economics. Very small paragraph I gave. Keynesian economics में मैंने बताया था कि this is a demand side theory. ठीक है, Keynes advocated for increased government expenditure and lower taxes to stimulate demand during the economic slowdown and depression. ठीक है. This theory was also advocated by economists to minimize economic slowdown due to pandemic. तो कैनेसियन इकोनॉमिक्स मैंने बताया था, यही क्वेश्चन आराम से कर सकते थे कैनेसियन इकोनॉमिक्स वाले कंसेप्ट से. ठीक है, देन सेकंड, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हम
जब मैं PYQ डिस्कस कर रहा था तो आई डिस्कस द सेम थिंग. आई टोल्ड यू दैट रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नाबार्ड, these are very important things. पेसा, फॉरेस्ट राइट एक्ट, देखो मैंने बोला था ना ये सारे इंपॉर्टेंट है. फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है. कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. they have asked about this. I also told you कि RBI whatever initiatives of RBI के ऊपर भी क्वेश्चन है. ठीक है. So this question, anyways, this urban cooperative banks was asked. I have discussed cooperative bank in India. I have also discussed the recent amendment, how the changes are there, what changes are made to this question. That was I discussed in 2011 PYQ research document. ठीक है, 2011 के PYQ document में research पे discuss किया था. Then copper smelting question. ठीक है, concern about copper smelting. ठीक है. I discussed about कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया था मैंने. फिर जनरली स्लैग्स, लीचिंग के बारे में भी आई डिस्कस अबाउट द स्टील स्लैग के बारे में डिस्कस किया था हमने. स्टील स्लैग. ठीक है, स्टील स्लैग के ऊपर क्वेश्चन पूछा था इन 2020. इस साल पूछा है 2021 में कॉपर स्लैग के ऊपर. That's why I always say researching on PYQs are the most important asset in your arsenal. ठीक है, कितना भी कुछ भी पढ़ते रहोगे, सारी चीजें करते रहोगे, इधर उधर रैंडम पेपर करते रहोगे, ठीक है, लेकिन अगर PYQ सही से नहीं किया है तो नहीं कर पाओगे. If you have done PYQ and not just whatever question which was asked, but also lateral thinking, you have to develop lateral thinking. Suppose question was asked about steel slag, so try to learn about some other slags also, like copper slag. ठीक है, copper slag, extraction of aluminium, how aluminium is extracted, copper, aluminium, iron, uranium, few important things you should know. ठीक है, तो ये copper slag. This I discussed that carbon monoxide is produced during the slag. ठीक है, I discussed this thing, and what are the health effects of carbon monoxide, that I discussed in 2014 PYQ document. Then next question is furnace oil. Although furnace oil was not directly discussed in PYQ, but when I discussed about petroleum coke, so sulfur heavy petroleum and other polluting fuels such as furnace oil, I discussed about this furnace oil, are widely used as cement factories, dyeing units, paper mills, brick kilns and ceramic businesses. India is the world's largest consumer of petroleum coke and all these things we have discussed here. ठीक है, आप देखो अगर इतना पता होता तो हम कर सकते थे. Product of oil refinery, some industries use it to generate power. Its use cause sulfur emission into environment. कर सकते थे. ठीक है, sulfur heavy petroleum coke and other polluting fuels such as furnace oil. ठीक है, आराम से अगर ये पढ़ा होता है 2017 के PYQ में, we would have done this question very easily. ठीक है, अगेन 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल के बारे में क्वेश्चन पूछा है 2015 के PYQ में. खजुराहो टेम्पल डिस्कस करते समय आई डिस्कस देयर आर मेनी टेम्पल्स एट खजुराहो, मोस्ट ऑफ देम आर डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड्स. There are some Jain temples as well as 64 Yogini temple. 64 Yogini temple is a small square shrine dedicated to historic devis or goddesses associated with tantric worship. ठीक है, तांत्रिक वर्शिप के बारे में बताया था. ठीक है, चलो ये वाला तो कम से कम एलिमिनेट कर सकते थे कि तांत्रिक वैष्णव कल्ट नहीं है, ये तांत्रिक वर्शिप है. ये हटाओगे आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये हटा दिए आपका आंसर आ जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 42 मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और इसके बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, इसमें आप देख लो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें मैंने डिस्कस किया है all the important information. You would have easily done it. ठीक है,
कि भाई इट डज नॉट टॉक अबाउट रिजर्व सीट बट इट टॉक्स अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। सी दिस लाइन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड टू वुमेन एंड द लेबर्स। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट इक्वल टू सेपरेट इलेक्टोरेट, दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये यहां से कर सकते थे इन 2019 PYQ। परमानेंट पर्माकल्चर का क्वेश्चन है, पर्माकल्चर क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 सेट ए। अभी जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं सेट ए के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। पर्माकल्चर फार्मिंग, पर्माकल्चर ये बता देख लिया 2018 क्वेश्चन में, पर्माकल्चर आई हैव डिस्कस्ड। परमानेंट एग्रीकल्चर, परमानेंट वैल्यू विच इज वेरी सस्टेनेबल। अगर इतना भी पता है कि पर्माकल्चर इज सम काइंड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो आप ये कर सकते थे, सस्टेनेबल होगा यानी कि ऑल द गुड एट्रीब्यूट्स विल बी देयर इन इट। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई योर कॉमन सेंस, राइट। पर्माकल्चर क्वेश्चन, मल्चिंग वाज आल्सो डिस्कस्ड। Practice of mulching is a very important permaculture farming. Option number 4. ठीक है, mulching was also discussed in the same 2018 PYQ along with the permaculture. ठीक है. The next question is Ocean Commission, Global Ocean Commission. ठीक है, rare earth metals are present in the sea floor. At least ये वाला statement तुम कर सकते थे। अगर ये वाला statement अगर आप eliminate करोगे तो आपका आंसर आ जाता। आई टोल्ड यू अबाउट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। आई टोल्ड यू कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स राइट टू द कंट्रीज फॉर मिनरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो ये वाला यहां से एलिमिनेट हो सकता था, 1 एलिमिनेट करते आपका आंसर आ जाता। इट इज द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, नॉट ओशन कमीशन, विच ग्रांट्स एक्सप्लोरेशन राइट्स टू द कंट्रीज, ठीक है। लीफ लिटर्स डिकम्पोजेस फास्टर, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये मैंने तो जो 60 वाला है, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर इन एनी, एक मतलब सम इंफॉर्मेशन आर गिवन और कौन से फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वो दिया है, ठीक है। इसमें एपिफाइट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसमें कैनोपी के बारे में बात की गई है। ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर देयर एंड एवरीथिंग आई विल जस्ट शो यू। सी इन 2015 PYQ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एपिफाइट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैनोपी, ठीक है। देख लिया, कैनोपी और एपिफाइट डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। अभी तक 10 सवाल दिखा दिए, 10वां सवाल ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्वेश्चन है, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जस्ट लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। We adopted parliamentary democracy based on British model, but how does our model different from British model? As regard legislation, British Parliament is supreme or sovereign, but India the power of Parliament to legislate is limited. ठीक है। In India, matters related to the constitutionality of the amendment of the act of the Parliament are referred to the constitutional bench by the Supreme Court. ठीक है। See, Indian Parliament in 2013 PYQ we discussed Indian Parliament is not sovereign because of these things. ठीक है। We have also discussed, we have compared Indian Parliament with the British Parliament. ठीक है कि Indian Parliament is not sovereign body unlike British Parliament. British Parliament is a sovereign body. Unlike British Parliament, authority and jurisdiction of the Indian Parliament are defined, limited and restrained. ठीक है। Factors like written nature of the Constitution, federalism, judicial review, fundamental right, basic structure of the doctrine dilute the sovereignty of Indian Parliament. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई है। That question you would have easily done, अगर ये देखा होता तो कर सकते थे। 2013 PYQ का ये डॉक्यूमेंट है, सब कुछ बुलेट फॉर्मेट में दिया हुआ, एवरीथिंग इज सजा के रखी हुई है, एवरीथिंग इज यू नो अरेंज्ड इन फ्रंट ऑफ यू इन अ प्लेटर। नेक्स्ट इज a legislation which confers on the executive
administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matters of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? ठीक है, अब ये देख लो, रूल ऑफ लॉ मैं डिस्कस किया था. A.B. Dicey in his book The Law of the Constitution has given the following implication of the doctrine of rule of law. There should be equality before law. ये सारी चीजें कि ये रूल ऑफ लॉ के बारे में, और ये सब कुछ किसमें है? आर्टिकल 14 में. 2018 के PYQ में डिस्कस किया था, देख लो, रूल ऑफ लॉ. ठीक है, ये भी कर सकते थे थोड़ा भी दिमाग लगाते. नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी आसान है, डायरेक्ट है एकदम. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? इसको तो पूरा एकदम वैसे का वैसा 2014 के PYQ में मैंने लिखा था. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीनिंग, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ पॉलिटिकल थियरी व्हिच एडवोकेटेड द कांसेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट. Thus, all such factors which act as a constraint over the power of the government adds to the concept of constitutionalism, like written constitution, judicial review, independent media, fundamental rights, federal structure, civil society. ठीक है, all these are the factor of constitutionalism or constitutional government. ये भी क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट था, कर सकते थे. तो अगर 250-300 पन्ने का कोई डॉक्यूमेंट में अगर आपको दूं और उसमें से अगर आप लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कर सको, तो आई थिंक दैट इज क्वाइट रीजनेबल कंसिडरिंग द चेंज्ड पैटर्न ऑफ यूपीएससी दिस टाइम. ठीक है, आई एम नॉट जस्ट बोस्टिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन योर आईज टू लुक एट थिंग्स. ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने ऐसा किया था देखो इतना आ गया, ऐसा मेरा कुछ, दैट्स नॉट माई पर्पज ऑफ मेकिंग दिस लेक्चर. I saw many comments on different YouTube channels, and also received many calls from the students. They were like कि sir ये I'm just giving up my UPSC preparation, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, it is so unpredictable and everything. ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है. आप थोड़ा समझने की कोशिश तो करो. आप अभी भी उसी दुनिया में जी रहे हो. You are still living in your own well, वो कुएं के मेढक की तरह वही मैगजीन पढ़े जा रहे हो, वही सारी चीजें, एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग जस्ट सॉल्विंग रैंडम टेस्ट पेपर्स एंड जॉइनिंग सम रैंडम टेस्ट सीरीज. ठीक है, ऑल्दो दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड, द चेंजिंग नीड ऑफ द पैटर्न. पिछले साल ही यूपीएससी ने दिखा दिया था कि भाई आगे आने वाले सालों में मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कंसेप्ट पे पूछूंगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट पूछूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क डिफरेंट रिपोर्ट एंड नेम ऑफ द सैटेलाइट्स एंड लूनर मिशंस एंड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, उसने तो पिछले साल हिंट दे दिया था, पर खुमारी है, उतरने का नाम नहीं लेती. तो दैट्स नॉट द यूपीएससी's मिस्टेक, दैट्स योर्स, दैट्स आर्ट्स इन फैक्ट. एनीवेज, तो ये है. तो थोड़ा सा वापस से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट पे जाइए. जस्ट गो बैक, इंट्रोस्पेक्ट, रिकैलिब्रेट, रीअलाइन, पुल योर सॉक्स फॉर 2022 prelims, which is expected to be held in June. ठीक है, थोड़ा सा करो उसको करना जरूरी है. आई कैन गिव यू वन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड. ठीक है, एक कंट्रीब्यूशन मैं अपने साइड से ये कर सकता हूं कि दिस ईयर थोड़ा सा वी स्टार्टेड दिस आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रीलिम्स सीरीज बिट लेट. ठीक है, और फिर PYQ के डॉक्यूमेंट को भी थोड़ा सा, और I should have got more time, then I would have done थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे. Instead of just 12 question, we could have reach to the 30 questions, 35 questions. तो 2022 के लिए देखो, अभी I am not committing anything. अभी this is just my thought. ठीक है, कि in the very in the first week of May we'll launch a small series
of art of solving with a separate approach. ठीक है, पिछले साल I did it ईयर वाइज, ठीक है, ईयर वाइज मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था. इस बार हम लोग टेक्निक वाइज क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे ताकि वो याद रखना आसान रहेगा. ठीक है, 7 to 8 टेक्निक्स वी डिस्कस्ड. आई विल कंबाइन ऑल 10 years पेपर जो क्वेश्चंस है वो एक टेक्निक पे कितने क्वेश्चंस पिछले 10 साल के आप कर सकते थे, आई विल जस्ट कंबाइन अकॉर्डिंगली. तो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Just knowing the technique doesn't help. Where you have to apply which technique, that is very important. ठीक है, जैसे मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाला जो क्वेश्चन था, मैंने क्या बोला था, अगर नहीं भी आता तो क्वेश्चन कर सकते थे. ठीक है, नहीं भी आता तो भी क्वेश्चन कर सकते थे. जस्ट लेट मी शो यू one of the thing which I discussed. ठीक है, one of the thing I discussed was मैंने क्या बोला था कि जनरली जो ब्रिटिश लॉज और एक्ट होते हैं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पूछता है. मैंने ट्रिक्स वाले में डिस्कस किया था. तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो भी मतलब नेगेटिव पूछता है जनरली. ब्रिटिश लॉ के कोई भी इनिशिएटिव जनरली होगा तो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट लॉ इज आस्क्ड. ठीक है, तो ये क्या है कि इट रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ. दिस इज पॉजिटिव, तो ये नहीं होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेचर, ये भी पॉजिटिव है. प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू वुमेन अच्छी चीज है. तो जनरली यूपीएससी हमेशा नेगेटिव होता है ब्रिटिश एक्ट, तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. ठीक है, जनरली ब्रिटिश एक्ट्स को नेगेटिव लाइट में यूपीएससी शो करती है. तो अगर पॉजिटिव क्वेश्चंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि भाई सारी औरतों को वोटिंग देने का अधिकार दे दिया गया, तो वो नहीं है और ये भी नहीं है. तो दैट वाज द थिंग. खैर एनीवेज, तो द पॉइंट इज फॉर 2022 this art of solving we will be combining the trick wise or intelligent guess wise rather than year wise as we did this year. इस तरीके से करेंगे. ठीक है, ताकि आसान रहेगा. जैसे मैंने ये रूल वाला बताया ना, इंग्लिश वाला, तो अभी तक 10 सालों में जितने भी ऐसे एक्ट्स या इनिशिएटिव्स हैं which can be done through this trick, we will combine together and will discuss at once so that you get to have a better insight. ठीक है, तो पहली चीज ये है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, द लैंग्वेज विल ऑल्सो कीप हिंदी प्लस इंग्लिश, बोथ लैंग्वेजेस. ठीक है, दोनों भाषाओं का यूज करेंगे. दिस ईयर वी डिड ओनली इन इंग्लिश. नेक्स्ट ईयर आई विल कीप हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेजेस टुगेदर. बोथ स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ क्वेश्चंस in bilingual language will be doing it, Hindi and English. Second thing. Third thing, we will also try to have five full length test paper based on PYQ. 500 क्वेश्चन PYQ के सिर्फ बेसिस पे, PYQ को ध्यान में रखते हुए 500 क्वेश्चन. तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि that will not just help in knowing the things but also revising and improving our span of knowledge. इतना अगर कर लिया, ये आर्ट समझ ली, PYQ डॉक्यूमेंट के रिसर्च को और बेहतर करेंगे, विल इम्प्रूव्ड एंड रिवाइज्ड और करेंगे उसको. मोर डायमेंशन विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट. ठीक है, मोर प्रोबेबल डायमेंशन. तो पहला चेंज ये होगा कि PYQ रिसर्च डॉक्यूमेंट विल बी मोर ब्रॉड, मोर रिवाइज्ड. आर्ट ऑफ सॉल्विंग वीडियो विल डू trick wise. And third change, we will also try to have this 5 full length test paper based on PYQs only. और एक और चीज करेंगे कि हम कुछ CSAT, few students have raised their concern about CSAT, how to solve questions in CSAT, what should be the approach, if any trick can be applied in CSAT also. So these are the changes. With these changes we will be launching art of solving prelims 2.0 for 2022. ठीक है, तो this was all about today's discussion. तो करते रहिए एंड देखो जो हो गया सो हो गया, whatever, let's bygone be bygone.
there is no point of banging your head against the wall if you're not clearing. Just keep your head high, keep floating. And if you're not able to clear, if you think that you won't be able to clear prelims this time, this is the time where you can focus on your mains preparation. Mains की preparation करिए, join some test series, prepare your notes, ठीक है, focus on your optional. This is not the time to focus on your prelims. If you're failing this year, ठीक है, अगर इस बार अगर somehow due to hard luck, if you're not able to get through merit this time, ठीक है, अगर like if you are getting just around 77 or below 75 or 80 below, मतलब worst case scenario में, so it is sure shot that you are not going to appear. ठीक है, अगर ऐसा लगता है, then just focus on your mains preparation. This is the time to consolidate your mains, and till February, April, March, April and May, I think that is more than enough for your prelims preparation. ठीक है, अभी तक February तक you have to focus on your optional paper, ethics, essay, art of answer writing, prepare your mains notes. Also join some good test series, whatever you feel like. ठीक है, तो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं मेंस के लिए, एंड जस्ट फोकस ऑन इट, जस्ट कीप राइटिंग, प्रिपेयर योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन इन द टेस्ट सीरीज. ठीक है, उसको करते रहिए और join some test series which is very punctual, and your copies get evaluated on time. It should not be like कि पेपर आज लिख रहे हैं और copies are getting evaluated after 20 days. That should not be the way. Join a test series where copies are generally corrected within a week or even before that, and you have access to your mentor who can assist you, or the evaluator who can assist you, or your areas of improvement. ठीक है, तो ये अभी फिलहाल कर लेंगे those who are not clearing prelims this year, and बाकी फरवरी तक यही करना है. After February, you can start your mains prelims preparation, and in the month of May we will meet again, and we will come with Art of Solving Prelims 2.0 with a better approach, better insight, larger span, and along with that this PYQ, 5 full length test papers based on PYQs. तो इसके लिए तब तक के लिए I would be just excuse me and just focus on your exam. So thanks for watching. Have a nice day.